हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਿਤਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ। Everybody loves to eat fruits, isn't it? I am sure कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ what is a fruit, what will be the answer? Definitely ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ fruits are tasty, fruits are aromatic, fruits are sweet in taste and fruits are nutritious. They boost up our immunity. But being a student of science, being a student of biology, अगर मैं कहाँ कि what is a fruit, तो what will be the our answer? Fruit is a ripened ovary. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ structure of flower ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ gynoecium portion ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ovary after fertilization changes into fruit. So ਜਦੋਂ pollen grains anther ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ through pollen tube male gamete ovary ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ovary ਦੀ fertilization ਹੋਏਗੀ ਔਰ ovary will change into fruit। ਔਰ ovary ਦੇ ਵਿੱਚ seeds, ovules ਹੁੰਦੇ ਨੇ and ovules will change into seeds। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ sexual reproduction in plants ਦੇ ਵਿੱਚ fruit ਬਣਦਾ ਹੈ। clear? So fruit ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ after fertilization, after ripening of the ovary, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ structural components ਨੇ। सो अगर असी वर्टिकल सैक्शन ऑफ फ्रूट कट के देखिए तो आउटर लेयर है जिहड़ी आउटर लेयर नू असी कहने एक्सोकार्प और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकार्प। मिडल लेयर इज मीजोकार्प एंड इनर लेयर इज एंडोकार्प। ये तीन लेयर्स ने फ्रूट दियां। एपिकार्प इज द आउटर लेयर, मीजोकार्प इज द मिडल लेयर, एंडोकार्प इज द इनर लेयर। तिन्ना लेयर्स नू कलैक्टिवली कहंदे हन पेरिकार्प। एंडोकार्प दे अंदर सीड है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सीड है और सीड्स ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ लेयर्स ने। आउटर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड टैगमन। ठीक है, ਤੁਸੀਂ सीड कोट ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ लेयर्स ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। क्लियर? सो जो भी असी फ्रूट खाते हाँ ਉਹਦੀਆਂ तीन लेयर्स ने। ये डिपेंड करता है कि असी एपिकार्प खा रहे हाँ या असी मीजोकार्प खा रहे हाँ या असी एंडोकार्प खा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक structural components of a fruit: pericarp is the layer of fruit, layer of ovary wall, ripened ovary. It consists of epicarp, mesocarp, endocarp and fruit ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Seeds. These are the ripened ovules after fertilization. ठीक है, ये चार्ट ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Now we want to classify the fruits और structure ਅਸੀਂ already ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਐਪਲ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੈ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੈ, ਟੋਮੈਟੋ ਹੈ। ਟੋਮੈਟੋ ਇਜ਼ ਏ ਫਰੂਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਰਾਈਪਨਡ ਓਵਰੀ ਆਫਟਰ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਫਰੂਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿ ਉਹ ਰॉ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰॉ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਟੋਮੈਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਾਈਪਨਡ ਓਵਰੀ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰੀ, ਸਟਾਈਲ, ਸਟਿਗਮਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪਲ।
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰੀਕਾਰਪ, ਕਿ ਫਰੂਟ ਵॉल ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੂਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਦ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ओरिजिन, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪਲ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨॉन ਕਾਰਪੈਲਰੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੂ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟਸ। ਹੁਣ ਟਰੂ ਫਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥੈਲਮਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਵਰੀ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਵਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਬਣਿਆ। no other part is involved in the formation of fruit। ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਫਰੂਟਸ। ਗ੍ਰੇਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਪ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫਰੂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ, ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਕਿ ਸਪੋਜ਼ I draw the diagram, this is the thalamus and this is the ovary portion। Clear? Now this thalamus becomes the fruit। ठीक है, edible part is thalamus, so it is a false fruit। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਡ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਵਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਥੈਲਮਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨॉन ਕਾਰਪੈਲਰੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ ਫਰੂਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਐਡੀਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ। ਸੋ ਐਪਲ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਰੂਟਸ ਵਿਚ ਡਿਵੈਲਪ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਰੀ, ਫॉर एग्जांपल टमाटो, ठीक है, मैंगो, एंड फॉल्स फ्रूट विच डिवेलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, फॉर एग्जांपल एप्पल, पीयर। पीयर दे विच तुसी देख रहे हो ये ओवरी है एंड एडिबल पार्ट इज थैलेमस। क्लियर। नाउ सैकेंड कैटेगरी जिहदे बेस ते असीं फ्रूट्स नूं क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्पल्स, कि किन्ने कार्पल्स इनवॉल्व ने फ्रूट फॉर्मेशन विच। अगर एक ही कार्पल इनवॉल्व है मीनस सिंगल ओवरी, सिंगल फ्लावर, सिंगल ओवरी एंड सिंगल फ्रूट, then that fruit is called simple fruit। हुण या तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਪਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਿਨ ਕਾਰਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਵਰ, ਸਿੰਗਲ ਓਵਰੀ, ਸਿੰਗਲ ਫਰੂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਰੂਟ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਲਾਵਰ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ बट मल्टीपल ओवरीज ने, मतलब कार्पल एपोकार्पस कंडीशन है गायनोशियम विच। सिंगल फ्लावर, मल्टीपल फ्रूट्स इन ए क्लस्टर। ठीक है, उन्होंने असीं कहांगे एग्रीगेट फ्रूट्स। स्ट्रॉबेरी दी एग्जांपल असीं अगे जाके देखांगे। थर्ड जिहड़ा है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स दे विच की है? पूरी दी पूरी इनफ्लोरेसेंस फ्रूट दे विच कन्वर्ट हो जाती है। मल्टीपल ओवरीज बट सिंगल फ्रूट। ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स बट सिंगल फ्रूट। हुण मल्टीपल फ्लावर्स तो पूरी दी पूरी इनफ्लोरेसेंस इनवॉल्व है लेकिन फ्रूट एक ही बन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने असीं कहांगे मल्टीपल फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल। ठीक है, सो इन्हां दोनों दे विच स्टूडेंट्स नूं कन्फ्यूजन हो जाती है। एग्रीगेट दे विच तुसीं याद रखना है सिंगल फ्लावर, बहुत सारे फ्रूट्स इन क्लस्टर्स। मल्टीपल दे विच बहुत सारे फ्लावर्स ऑन द इनफ्लोरेसेंस but fruit is single। that fruit is called multiple or composite fruit also। examples ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ। ठीक है, सो अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ on the basis of number of ovaries fruit can be simple, fruit can be aggregate, fruit can be multiple।
ठीक है। हुण क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पेरिकार्प, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਰੂਟਸ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਵਰ ਸਿੰਗਲ ਫਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਜੂਸੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਫਲੈਸ਼ੀ ਫਰੂਟਸ। ਕੀ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਦਾ, ਐਪੀਕਾਰਪ, ਮੀਜ਼ੋਕਾਰਪ, ਐਂਡੋਕਾਰਪ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੂਸੀ ਪਾर्ट नहीं है, तो उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੇ। ਬਟ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਡਰਾਈ ਹੈ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਐਡੀਬਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਰੈਸ਼ੀ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ੀ ਫਰੂਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਇਜ਼ फ्लैशी जूसी। बेरी है फर्स्ट कैटेगरी, पेपो है, पोम है, हेस्पिरिडियम है, बालोस्टा है, ड्रूप है, एम्फीसार्का है। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਫਰੂਟ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਰੂਟ, ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਫਰੂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਰੀ। ਬੈਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਬੈਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੀ ਸੀਡਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਟੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਸ਼ੀ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਡੀਬਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਪੀ, ਮੀਜ਼ੋ, ਐਂਡੋ, ਸੀਡਸ, ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਰ ਐਡੀਬਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਐਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ੀ पोर्शन है थोड़ी स्किन थिक है वो की होगी मीजो, ठीक है। उस तो बाद सीड्स दे अराउंड तुसी देखिए एक पल्प हुंदी है दैट इज एंडो एंड दिस इज प्लेसेंटा। सीड्स तो तुहानू दिख ही रहे ने। ऑल द पार्ट्स आर एडिबल इन टोमैटो, दैट इज वाई इट इज ए सुपीरियर बैरी। हुण इस तरह इनफीरियर बैरी भी है, ठीक है वो बैरी इनफीरियर ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਐਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਪਪਾਇਆ, ਪਪਾਇਆ ਦੀ ਐਪੀਕਾਰਪ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡੋਕਾਰਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਪੇਪਰ ਲਾਈਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਐਡੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਨ ਈਟ, दैट इज मीजोकार्प। एडिबल पोर्शन इज मीजोकार्प, ठीक है बेटे। सो ये हो गया बैरी। नैक्सट कैटेगरी किहड़ी है पीपो। हुण तुसी देख रहे हो ना ये फ्रूट तो असी यूज करते हैं। आजकल तो वाटरमैलन का सीजन चल रहा है, क्यूकम्बर तो हर सीजन दे विच मिलता है, असी खांदे हैं, ठीक है। लेकिन अज सानू पता चलिया कि इहदा टाइप ऑफ फ्रूट किहड़ा है पीपो। इहदे विच और बैरी विच की डिफरेंस है कि इहदी एपीकार्प थिक है। हुण तुसी वाटरमैलन दी उपर एपीकार्प तां असी हार्ड हुंदी है ना, जिहड़ा है किन्ने तेज नाइफ दे नाल असी शार्प नाइफ दे नाल इस नूं उतारदे हां। फिर आ जिहड़ी वाइट कलर दी दिख रही है ये मीजोकार्प है। हुण एडिबल पार्ट किहड़ा है वाटरमैलन दे विच, एडिबल पार्ट है एंडोकार्प, जिहड़ा तुसी देख रहे हो रेड कलर दा एंडोकार्प इज एडिबल, क्लियर। और कुकम्बर दे विच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज एडिबल है ना, डिपेंड्स कि वो लाइव एपीकार्प और नॉट, अदरवाइज सारे पार्ट्स इस खा सकते हैं। एपी ग्रीन कलर का की है एपीकार्प है, उस तो बाद वाइट कलर का मीजोकार्प एंड सीड्स दे अराउंड है जिहड़ा दैट इज एंडोकार्प एंड सीड्स, एवरी पार्ट इज एडिबल, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज पोम। पोम्स आर नथिंग बट फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में तुहानू दस ही दिता विच आर फॉर्म फ्रॉम द नॉन कार्पेलरी पार्ट। जिस तरह एप्पल है, एप्पल का एडिबल पार्ट की है थैलमस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। आ सेंटर दे विच है जिहड़ा ये ओवरी पोर्शन है, ओवरी दे विच एंडोकार्प है, ठीक है। और जिहड़ा है एपी मीजो एंडो कोई भी चीज़ एडिबल नहीं है, सो इट इज ए फॉल्स फ्रूट। फॉल्स बिकॉज थैलमस इज एडिबल, दिस इज द थैलमस विच इज एडिबल पोर्शन।
क्लियर। हेस्पेरिडियम, नाउ अगेन यू विल थिंक कि हेस्पेरिडियम क्या है, लेकिन नीचे देखो बेटे, ऑरेंज सारे खांदे हैं असी, ऑरेंज दी टाइप की है हेस्पेरिडियम। जिहड़ी ऑरेंज दी बाहरली स्किन है वो एपी एंड मीजो मिलके बनी हुई है, थिक है, इनू कहंदे ने रिंड, RIND रिंड। एपी एंड मीजोकार्प दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए थिक रिंड ऑफ द फ्रूट, ठीक है। और एडिबल पार्ट की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो फ्लैशी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। I will change the color so that you can see, ਇਹ देखो these are the एंडोकार्प, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ऑरेंज ਨੂੰ जूसी पार्ट असी खांदे, एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ एंडोकार्प है, जूसी हेयर्स ऑफ द एंडोकार्प। ऑरेंज लैमन सिट्रस जिन्ने भी सिट्रस फ्रूट्स ने उन्हां दे विच एंडोकार्प तो हेयर्स निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिहड़े फ्लैशी हो जाते हैं, सो उन्हां नूं असीं खांदे हां। सो एडिबल पार्ट इज हेयर्स, यूनिसेलुलर हेयर्स ऑफ द आउटग्रोथ ऑफ एंडोकार्प। नैक्सट टाइप ऑफ फ्रूट इज बालाउस्टा, ठीक है। नाम तुहानूं जरूर थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लगेगा, मे बी तुसीं पहलां नहीं सुनिया होएगा, लेकिन ये फ्रूट तो देखिया ना बेटे, अनार, पॉमग्रेनेट, आउटर रेड कलर लेयर हुंदी है जिहड़ी, वो की है एपीकार्प, फिर उस तो बाद लाइट पिंक जिहड़ी हुंदी है वो मीजोकार्प हुंदी है, और फिर वाइट जिहड़ी पेपरी हुंदी है स्किन, ठीक है, जिहदे विच सीड्स हुंदे ने, वो की है एंडोकार्प है। और सीड्स दे बाहर जिहड़ा चीज जूसी हुंदी है दैट इज द टेस्टा ऑफ द सीड। ऐसे करके मैं तुहानूं कहा सी सीड्स दी लेयर भी तुसीं याद रखनी है, आउटर टेस्टा, इनर टैगमन। सो टेस्टा इज जूसी, ठीक है, जिहड़ी एडिबल है पॉमग्रेनेट दे विच। सो टाइप ऑफ फ्रूट इन पॉमग्रेनेट इज बालाउस्टा। ड्रूप, वन सीडेड फ्रूट होंगे ने, जिन्ने भी ड्रूप्स होंगे उन्होंने विच एक ही सीड होएगा। और करैक्टरिस्टिक फीचर की है स्टोनी एंडोकार्प, एंडोकार्प इन्नी हार्ड होएगी कि असी उसनूं ब्रेक नहीं कर सकते, कि अगर असी उसनूं प्रेस करके देखिए तो असी अपने हत्थां नाल भी उन्नूं ब्रेक नहीं कर सकते। मैंगो, मैंगो तो तुसी खांदे हो, मैंगो दे विच हुण किहड़ा पोर्शन असी डिस्कार्ड करते हैं बेटे, नाइफ नाल पील करते हैं, एपीकार्प जिहड़ा पल्प है, ठीक है, जो असी इंजॉय करते हैं स्वीट जूसी, वो है मीजोकार्प। और एंडोकार्प की है जिहड़ी असी गुठली सट दिंदे हां, ओहदी आउटर लेयर की है एंडोकार्प है। सो ये गुठली दी जिहड़ी है आउटर लेयर वो की है एंडोकार्प, और ओहदे अंदर की है सीड है, क्लियर। सो सीड बहुत हार्ड हुंदा है और एंडोकार्प भी हार्ड है। इस तरह आलू बुखारा, प्लम, पीच, ये सारे की ने ड्रूप्स ने। कोकोनट, तुसी ग्रीन कोकोनट देखिया होएगा, है ना, ग्रीन लेयर है जिहड़ी इहदी, हुण वो की है एपी लेयर। जदों मैच्योर नहीं होया हाले कोकोनट, उस तो बाद मैच्योर हो जाता है तो फाइबरस लेयर है जिहड़ी, वो मीजोकार्प है जिहड़ी, वो फाइबरस लेयर विच कन्वर्ट हो जाती है। उस तो बाद जो असी फाइबरस लेयर भी उतारती, मीनस असी मीजोकार्प उतारती, अंदरों स्टोनी स्टोन लाइक राउंड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, बहुत हार्ड होंदा है, वो की हुंदी है एंडोकार्प। और एंडोकार्प दे अंदर की है एंडोस्पर्म है, गरी है जिहड़ी असी खाने। सो एडिबल पार्ट इन pomegranate, sorry, in coconut is endosperm. Seventh type is एम्फीसार्का। बेल दा फ्रूट तुसी देखिया होएगा, इन्हू वुड एप्पल कहते हैं, वुडी बहुत है, बहुत हार्ड है, ठीक है। एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सारियां ही की ने इहदियां हार्ड ने। तो एडिबल अंदर जिहड़ा पल्प है वो की एक्चुअली प्लेसेंटा। हुण बेटे प्लेसेंटा की हुंदा है, प्लेसेंटा इज द पोर्शन ऑफ ओवरी जिथे ओव्यूल अटैच हुंदा है। सपोज दिस इज द ओवरी, ठीक है, और इहदे नाल की अटैच है ओव्यूल। यह चीज है जिहड़ी थोड़ी जी स्वूलन होएगी ओवरी दे उत्ते, इहनूं असीं की कहांगे प्लेसेंटा, ठीक है। सो तुसीं देख रहे हो कि प्लेसेंटा है जिहड़ा एडिबल होएगा, क्लियर। सो दिस इज एम्फीसार्का। सो ये 7 टाइप्स ने साडियां फ्लैशी फ्रूट्स दियां। हुण असीं करदे हां सिंपल ड्राई फ्रूट्स, जिन्हां दी पेरिकार्प है जिहड़ी वो ड्राई है। कोई भी पार्ट पेरिकार्प दा, चाहे वो एपी है, मीजो है, एंडो है, वो जूसी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, फ्लैशी नहीं है।
तो ड्राई फ्रूट्स ने जिहड़े उन्होंने असी 3 कैटेगरीज दे विच डिवाइड कर सकते हैं, डिहिसेंट, इंडिहिसेंट एंड शाइजोकार्पिक। डिहिसेंट मीनस कि फ्रूट मैच्योरिटी ते अपने आप ही रप्चर हो जाता है फॉर सीड डिस्पर्सल। इंडिहिसेंट मीनस कि फ्रूट अपने आप रप्चर नहीं होएगा। शाइजोकार्पिक मीनस कि इन बिटवीन डिहिसेंट एंड इंडिहिसेंट टाइप का बिहेवियर शो करेगा। चलो असी सब तो पहला सिंपल ड्राई फ्रूट्स डिहिसेंट फ्रूट्स देखते हैं कि जिहड़े अपने आप मैच्योरिटी ते रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, सपोज है फ्रूट है जिहड़ा रप्चर हो गया और इहदे विचों जिहड़े ने सीड्स अपने आप बाहर थ्रू विंड डिस्पर्स हो गए। डिहिसेंस ऑफ द फ्रूट फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। इहदे विच किहड़ियां कैटेगरीज आ जांदियां बेटे, लेग्यूम्स, फॉलिकल्स, सिलिक्वस एंड कैप्सूल। ठीक है, I know the names are new for you, but these type of fruits, I am 100% sure they are not new for you. You have seen all these types of fruits. Just to remember their names. Okay, so legumes, मटर तो सबने देखे हुए ना बेटे। ਇਹਦਾ फ्रूट का नाम की है, लेग्यूम और पॉड कह देंगे ने इनू। ठीक है, डिहिसेंट फ्रूट्स ने। मटर जो ड्राई हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये दोनों साइड्स तो ओपन हो जाता है। जो असी घरे मटर के दाने कढ़ते हैं नॉर्मली असी एक साइड ओपन करते हैं, लेकिन नैचुरल नेचर के जो मैच्योर होता है तो दोनों साइड्स ओपन हो जाती है और सीड्स आर आउट इन द इन्वायरमेंट, दे आर डिस्पर्स्ड फॉर फर्दर जर्मीनेशन। ग्राम एंड पी दी एग्जाम्पल लै सकते हो इन केस ऑफ लेग्यूम्स। अनदर इज फॉलिकल, फॉर एग्जाम्पल लार्कस्पर। लार्कस्पर हो सकता है तुसी ना देखा होवे, लेकिन तुसी कैलोट्रोपिस अक का जरूर देखा होएगा पौधा। उहदे जिहड़े फ्रूट्स ने ग्रीन कलर के बिग साइज के होंदे ने, दे आर फॉलिकल्स। फॉलिकल्स एंड पॉड्स दे विच की फर्क है कि ये सिर्फ एक साइड तो ओपन होएगा। तुसी देख रहे हो एक साइड तो ही ओपन हो रहा है फॉर डिस्पर्सन। डॉर्सल साइड तो या डॉर्सल तो होएगा या वेंट्रल तो होएगा, दोनों साइड तो जिहड़े सूचर्स बने हुए ने, मार्क्स ने, उन्हां तो ओपन नहीं होएगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ डिहिसेंट फ्रूट इज सिलिक्वा। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली, ब्रैसिकेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अगर तुसी कदे मस्टर्ड की फली देखी होवे, फलियां तो जो मैच्योर हो जांदियां ने तो इस तरह ओपन हो जाती हैं, फ्रॉम बेस टू टॉप ओपनिंग स्टार्ट होंदी है। और जिहड़े सीड्स ने वो इस स्ट्रक्चर के नाल अटैच बाहर नूं हैंग करते हैं। दिस इज द फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रैपलम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है रैपलम किहड़े फ्रूट्स पाया जाता है, फ्रूट्स ऑफ ब्रैसिकेसी मस्टर्ड दे विच। इस फ्रूट नूं असीं की कहने आ, सिलिक्वा। ठीक है, नैक्सट डिहिसेंट फ्रूट की है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स भी तो बहुत वैरायटी दे विच जिहड़े ने ओपन होंदे ने, इन्हां दा वे ऑफ डिहिसेंट है बहुत वेरी करता है। जिवें पॉपी दे विच असीं देखिए तो जिहड़ा फ्रूट है पोर्स दे थ्रू जिहड़ा ये जदों स्विंग करेगा तो ये पोर्स ने इन्हां दे विचों सीड्स बाहर निकलणगे। सो पोरोसाइडल वे ऑफ डिहिसेंस है, क्योंकि असीं वो फ्रूट्स देख रहे हैं कैटेगरी जिहड़े डिहिसेंस शो करते हैं, जिहड़े अपने आप रप्चर हो जाते हैं टू डिस्पर्स द सीड्स, कि सीड्स बाहर खिंड जान। या फिर की होएगा वैल्व्स के थ्रू भी फ्रूट ओपन होंदा है, जिस तरह ओकरा। ठीक है, लेडी फिंगर दे विच तुसीं देखिया लेडी फिंगर की शेप किस तरह होंदी है, इस तरह की होंदी ना लेडी फिंगर। सो दीज आर द वाल्व्स। ठीक है, अगर जो असीं घरे भी लेडी फिंगर कट के देखते हैं तो इस तरह का आकार होंदा ना, सो इत्थों ओपन हो सकता है, दीज आर द वैल्व्स। इस तरह कॉटन दा फ्लावर, ठीक है, ए देखो वैल्व्स के थ्रू ओपन हो रहा। ठीक है, चारों तरफ वैल्व्स ने। कॉटन दा फ्लावर की होया, विच कॉटन दे अंदर सीड्स ने, ये डिस्पर्स हो जाएंगे। क्लीयर। हुण असीं गल करते हैं इनडिहिसेंट फ्रूट्स जिहड़े अपने आप रप्चर नहीं होंदे फॉर द सीड डिस्पर्सल। या तो कोई उन्होंने डीकंपोजिशन होएगी, या किसी का पैर आ गया फ्रूट के उपर तो सीड्स बाहर निकलणगे, या किसी ऑर्गेनिजम्स ने खाया फ्रूट तो उहदे जिहड़ा है आफ्टर जदों अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा तो उदों सीड्स ने जिहड़े डिस्पर्स होंगे। किहड़े-किहड़े हो सकते हैं? कैरियोप्सिस, अकीन, नट, सिप्सेला, समारा। ये सारे फ्रूट्स तुसी देखे हुए ने। ठीक है, डोंट वरी,
ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਰੀਓਪਸਿਸ, ਕੈਰੀਓਪਸਿਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਕੀ, ਮੇਜ਼, ਕੈਰੀਓਪਸਿਸ ਫਰੂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰੀਕਾਰਪ। ਹੁਣ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਐਪੀਕਾਰਪ, ਮੀਜ਼ੋਕਾਰਪ, ਐਂਡੋਕਾਰਪ, ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ 3 ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਫਰੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੀਡ ਕੋਟ, ਟੈਸਟਾ ਐਂਡ ਟੈਗਮਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟ ਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਡ ਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀਓਪਸਿਸ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਟ ਐਂਡ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਈ ਵੀ call these fruits as grains? Because pericarp and seed coat are fused. Next category indehiscent ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੀਨਸ। ਅਕੀਨਸ ਬੇਟੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਡਡ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਐਂਡ ਸੀਡ ਕੋਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਊਜ਼ਡ, ਕੈਰੀਓਪਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮਿਰਾਬਲਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। थर्ड कैटेगरी इन सिंपल ड्राई फ्रूट इंडहिसेंट है नट। नट भी 1 सीडेड फ्रूट ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਕਾਰਪ इज वेरी हार्ड, वेरी टफ। कैश्यू नट, लीची, लीची देखो सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਚੀ ਖਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਦਰੀ ਲੇਅਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, दैट इज ਪੈਰੀਕਾਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲੈਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दैट इज एडिबल। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟ, ਕਾਜੂ ਉਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੂ ਨਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਪੀ ਮੀਜ਼ੋ ਐਂਡੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਐਡੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ सीड। और तुसी कहोगे कि फ्लैशी पोर्शन की है, दिस फ्लैशी पोर्शन इज थैलेमस। एनू भी कई लोग खाते ने, ठीक है, क्लियर। सो नट्स हो ने जिन्हां दे विच पेरिकार्प इज वेरी टफ। सिपसेला, ये फ्रूट दे विच की है, करैक्टरिस्टिक फीचर की है कि हेयर लाइक जिहड़े ने स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक्चुअली दीज आर द मॉडिफाइड कैलक्स, इन्हों कहते हैं पैपस, ठीक है। यह फ्रूट है नीचे, ठीक है, हवा के नाल उड़ते हैं और फ्रूट जिहड़े ने उहदे विचों फिर सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं, बट दे डू नॉट रप्चर एट देयर ओन, ठीक है। सो जदों डिग्रेड होणगे, डिकंपोज होणगे, तां ही इहदे विचों की निकलणगे, सीड्स निकलणगे। एस्ट्रेसी फैमिली का करैक्टरिस्टिक फीचर है पैपस। सो बेटे लास्ट कैटेगरी है जिहड़ी ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट्स की, वो है समारा। समारा दे आर विंग्ड फ्रूट्स। विंग्ड फ्रूट्स क्यों कहते हैं इन्हां नूं? क्योंकि तुसीं देख रहे हो सीड्स दे अराउंड पेपरी विंग लाइक स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है। एक्चुअली दिस विंग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिकार्प। पेरिकार्प स्ट्रेचेस आउट इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। सो एग्जाम्पल तुसी लै सकते हो शोरिया रोबस्टा, रोड साइड के उपर तुसी ये ट्रीज देखे होंगे जरूर, और काफ़ी जिहड़े इन्हां दे फ्रूट्स ने वो नीचे गिरे हुंदे ने। चलो हुण थर्ड कैटेगरी असीं करदे हां सिंपल ड्राई फ्रूट्स दी, जिहड़े ने शाइजोकार्पिक फ्रूट्स। मीनस कि ये डहिसेंस शो भी करते हैं और नहीं भी करते, इन बिटवीन डहिसेंट एंड इनडहिसेंट फ्रूट्स ने, ठीक है। हुण इहदे विच की हुंदा है कि सपोज दिस इज ओवर फ्रूट, ए फ्रूट दे विच की ने सीड्स ने, एंड जदों फ्रूट मैच्योर होएगा तो ये छोटे छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सीड फिर भी इहदे विचों बाहर नहीं निकलणगे बिकॉज द फ्रूट इज इनडहिसेंट। लेकिन डहिसेंस हुई है, फ्रूट जिहड़ा है ब्रेक होया है, सीड उहदे चों नहीं निकलिया, और ये जिहड़े इंडिविजुअल पार्ट्स ने आफ्टर ब्रेकेज इन्हां नूं कहंदे ने मैरीकार्प। की कहते हैं बेटे, मैरीकार्प, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स ने जिहदे विच की है फ्रूट डहिसेंस भी शो करेगा और फिर उहदे विचों सीड्स भी बाहर निकल जाएगा। उन्हां फ्रूट्स नूं असीं कहने आ जिहड़े पार्ट्स उहदे सैपरेट हुंदे ने, उन्हां नूं असीं कहने कोकाई, ठीक है। सो तुसीं याद रखना मैरीकार्प दे विचों सीड बाहर नहीं निकलेगा और कोकाई दे विचों सीड बाहर निकलेगा, ठीक है। सो ये शाइजोकार्पिक फ्रूट्स ने।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੋਕਾਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੋਕਾਰਪ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਾਈਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਨਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, लेकिन दोनों पार्ट्स अटैच रहेंगे एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मैरिकार्प्स, ठीक है। सो इस तरह के नाल ये फ्रूट ब्रेक होएगा, सीड फिर भी ਇਹਦੇ अंदरों बाहर नहीं निकलणगे। सो दीज आर मैरिकार्प्स। Name of the fruit in case of coriander is cremocarp, means one cremocarp is equal to 2 मैरिकार्प्स, ठीक है। मैरिकार्प्स means attached to each other। रेगमा ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ੋਕਾਰਪਿਕ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਕਾਈ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਫੋਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਡ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਕਾਈ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ੋਕਾਰਪਿਕ ਫਰੂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੋਮੈਂਟਮ, ग्राउंडनट, तुसी देखी होएगी मूंगफली दे विच की कंस्ट्रिक्शंस बनिया हुंदी है, इसे तरह अकेशिया दा लोमेंटम है, ठीक है। फ्रूट इज समवट लाइक दिस, इत्थे कंस्ट्रिक्शंस ने, ठीक है। और हर एक कंस्ट्रिक्शन दे विच की है मतलब एक सीड है। सो ये लोमेंटम फूड, एक ही दा लोमेंटम अकेशिया दा, रेडिश दा, ठीक है, ग्राउंडनट दा, मिमोसा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लोमेंटम। ये देखे हुए ने ना फ्रूट्स तुसी, एटलीस्ट अगर चलो तुसी कहो कि असी अकेशिया नहीं देखिया, मिमोसा नहीं देखिया, लेकिन ग्राउंडनट तो देखिए सब ने। फ्रूट दे विच जिहड़ियां है तुसी देखिए किन्नियां उहदे च कंस्ट्रिक्शंस हुंदियां, कई ग्राउंडनट दे विच 3-3 अगों सीड्स निकलदे ने। सो एपीमीजो जिहड़ियां काप ने देखो किन्नियां ड्राई हुंदियां ने, द एडिबल पोर्शन इज सीड। हुण आ जाओ तुसी एग्रीगेट फ्रूट्स, क्योंकि असी इत्थों तक सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स एंड सिंपल ड्राई फ्रूट्स फिनिश कर ले। एग्रीगेट फ्रूट्स मतलब वन फ्लावर, सेवरल फ्रूट्स इन ए क्लस्टर, सेवरल राइपन्ड ओवरीज ऑन ए सेम फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर के ऊपर काफी सारी राइपन्ड ओवरीज, और राइपन्ड ओवरीज की होंगे बटे फ्रूट। सो छोटे छोटे फ्रूटलैट्स बननगे एक क्लस्टर दे विच। स्ट्रॉबेरी, कदे तुसी स्ट्रॉबेरी देखो, अगर तुहाडे घर च कदे स्ट्रॉबेरी तुसी लैके आओ तो उन्नू तुसी मैगनीफाइंग लैंस दे नाल देखण दी कोशिश करिया जे, तुहानू किन्ने ही छोटे छोटे फ्रूटलैट्स ने जिहड़े ओ दिखाई देणगे। ईच फ्रूटलैट इज ए राइपन्ड ओवरी। इस तरह कस्टर्ड एप्पल इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स या कंपोजिट फ्रूट्स, several ripened ovaries of several flowers on the inflorescence, but fruit is one, ठीक है। उन्होंने ਅਸੀਂ मल्टीपल फ्रूट कहने हैं कि पूरी दी पूरी इनफ्लोरेसेंस, व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस, और पूरे दे पूरे फ्लावर्स उस एक्सिस के उत्ते उन्होंने एक फ्रूट बना लिया कंबाइन करके, ठीक है। सो मल्टीपल फ्रूट्स दे क्योंकि ਅਸੀਂ इनफ्लोरेसेंस की गल कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस भी ਅਸੀਂ पढ़िया हुई हैं। अगर तो इनफ्लोरेसेंस कैटकिन है, स्पाइक है या स्पैडिक्स है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ फ्रूट बने है, उस फ्रूट ਨੂੰ ਅਸੀਂ कहांगे सोरसिस। फॉर एग्जाम्पल मलबरी, जैक फ्रूट, ठीक है, कटल जिसनू कहने पाइन एप्पल, ऑल दीज आर सोरसिस फ्रूट्स। और अगर इनफ्लोरेसेंस हाइपनथोडियम है जिहड़ी फाइकस च देखने को मिलती है तो उस फ्रूट नू असीं कहने साइकोनस। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सोरसिस एंड साइकोनस, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ मल्टीपल फ्रूट्स। क्लियर। चलो हुण असीं देखते हैं फंक्शंस ऑफ फ्रूट। फंक्शंस की है बेटे, ठीक है। समवन सेज फंक्शन क्या हो सकते हैं फ्रूट के, हम खाते हैं फ्रूट, यही इसका फंक्शन है, पर ऐसा नहीं है। फ्रूट का की फंक्शन है बेटे, इट प्रोटेक्ट द सीड एंड एम्ब्रियो। फ्रूट दे विच सीड है, सीड दे विच एम्ब्रियो है, सो फ्रूट उसनू प्रोटेक्ट करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है। सीड की डिस्पर्सल च हैल्प करता है। हुण असीं टेहिसन फ्रूट्स देखे ने कि किस तरह अपने आप रप्चर हुंदे ने और उस तो बाद सीड्स डिस्पर्स हुंदे ने, ठीक है। सो असी फ्रूट्स बारे इन्ना कुछ पढ़िया, टाइप्स पढ़िया, डेहिसेंस का पैटर्न पढ़िया, इनडेहिसेंट फ्रूट्स पढ़े, ठीक है। सारी स्टडी ऑफ फ्रूट नू की कहंदे ने पोमोलॉजी। याद रखना तुसी, व्हाट इज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट।
एंड यू शुड नॉट फॉरगेट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਮੈਂਗੋ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਗੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਆਵਰ ਲੈਕਚਰ, ਸੀਡ। ਹੁਣ ਸੀਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਓਵਰੀ ਫਰੂਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਨਵਰਟ, ਐਂਡ ਓਵਿਊਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਫਟਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਡ ਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So seed is a fertilized mature ovule that possesses embryonic plant, stored material and seed coats. Clear? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡ ਕੋਟਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੀਡ ਕੋਟਸ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਸਟਾ, ਐਂਡ ਇਨਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਗਮਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਵਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਟੋਮਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੀਓ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਬਰੀਓ। ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਰੂਟ, ਪਲੇਮਿਊਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੂਟ, ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਨੇ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਫੂਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ seed, and actually it is a dicot seed क्योंकि दो cotyledons दिख रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, so it is a dicot seed of gram। ਹੁਣ seed ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫਟਰ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਬਰੀਓ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਸਟਿਲ ਪਰਸਿਸਟ, ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਐਂਡੋਸਪਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਡੋਸਪਰਮਸ ਆਰ ਐਲਬਿਊਮਿਨਸ ਸੀਡਸ। ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗਿਵਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਐਂਬਰੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨॉन ਐਂਡੋਸਪਰਮਸ ਔਰ एक्स albuminous seeds which lack the endosperm, example pea and bean। ठीक है, so these are the classification of seeds depending upon the presence of endosperm or absence of endosperms। now on the basis of number of cotyledons ਅਸੀਂ structure of seed ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ cotyledons ਨੇ ਤਾਂ seed is dicotyledonous seed। ठीक है, P, और अगर एक ही कॉटिलेडन है then that seed is called monocotyledonous maize। ठीक है, मेज ਦਾ डायग्राम है इस तरह, मेज ਦਾ सीड ਹੁੰਦਾ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ cotyledon है, only single cotyledon, then those seeds are called monocotyledonous seeds। clear? now function of seeds, seeds ਦੇ ਕੀ function ਨੇ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਡ 'ਚ, ਉਹ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੋਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਡ ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਰਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਡੋਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? So with this we have finished our today's topic, structure of fruit and structure of seed। ठीक है, thank you, study well, learn well and stay safe।